Hello everyone, welcome to GoPrep, and here we are with the paper analysis and the detailed solutions of the GTAC Slot 2 exam that was just conducted today. So I hope all of you would have performed very good, है ना? और just in case if you have not attempted, if you are not able to take up the Slot 2 part of the GTAC exam today, you can definitely take the test tomorrow as well at the two remaining slots, that is slot number 3 and slot number 4. either at 12 noon or at 8 p.m. tomorrow. ठीक है बच्चों? The link for registering for taking up that particular test is present in the description of this particular video. And one more thing you all should know, that is we are going to conduct a workshop on after this GTSC examination on Monday. तो Monday को भी सबको सेशन जरूर से अटेंड करने की जरूरत है and take part in the workshop after GTSC examination for all the students specifically over here. राइट चलिए बात करते हैं स्लॉट 2 एग्जाम की. बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे सर आंसर्स क्या है ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स. सो आई एम ओवर हियर. निर्भय विल स्टार्ट ऑफ विद द फिजिक्स पोर्शन. तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं यहां पर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 दैट सेज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 grams and 200 grams are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter and 1 meter per second, right? So this data is given to us, they collide, and after the collision the first body moves with a velocity of something is given to us, right? So it is clearly been mentioned over here that they are moving along the same line. तो मैं ये बोल सकता हूं कि चलो ये वाला बॉडी अगर है तो let's say that this one is a 200 gram body and another one will be let's say a 100 gram body as such over here. ये एक दूसरे के ऐसे मूव कर रहे हैं let's say, right? So अगर मैं बोलूं कि ये है 1 मीटर पर सेकेंड और ये मूव कर रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड से इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, so they will undergo some collision. इनका collision होता है यहाँ पर. That is all. You all should be able to check it out over here. सब लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे जल्दी से. Recall what was asked in the question. रीड करो क्वेश्चन जल्दी से सब लोग, है ना? 100 ग्राम का एक बॉडी है, 200 ग्राम्स का एक बॉडी है, आर मूविंग along the same line and the direction as well with the velocities given to us. ठीक है, ओके सर. देन व्हाट आर वी गोइंग टू सी? देन मैं बोल सकता हूं लेट्स से ये वाला मेरा बॉडी है 100 ग्राम का और ये वाला है लेट्स से 200 ग्राम्स का. सो द एंटायर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद भी इसका मोमेंटम जो है बच्चों वो कंजर्व्ड रहने वाला है, राइट? सो इफ इट हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर तो पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकाल लूंगा यहां पर, है ना? द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं जल्दी से यहां पर. So mass is 0.1 kg. ध्यान रखना है इस चीज को. Of the first body जो 100 grams वाली बॉडी है, multiplied its velocity that is 2 meters. So that is कितना हो जाएगा 0.2 into 2. So that will be 0.1 into 2. So that will be 0.2 over here. Plus the momentum of the 200 gram वाला बॉडी, उसकी mass है 0.2 kg and the velocity is 1 meter per second. So that will also be 0.2 over here. तो ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट में इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा. यू कैन राइट इट डाउन एज 0.4 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज व्हाट यू कैन राइट डाउन एज द इनिशियल मोमेंटम. दिस विल रिमेन कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन. किया था सभी ने ये चीज? नहीं किया था क्या? अरे यही तो करना था. ठीक है, तो दे कोलाइड एंड लेट्स से दैट द फर्स्ट बॉडी मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67, राइट? So what do we observe over here is that after collision this is moving with a speed of 1.67 and we have to evaluate the velocity of this particular body over here. So ये है 200 ग्राम की बॉडी और ये है मेरी 100 ग्राम्स वाली बॉडी. After the collision this is the situation, right? So momentum will again remain conserved over here. मैं अगर बात करूं यहाँ पर मोमेंटम की तो आप देख सकते हैं फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों. फाइनल मोमेंटम कैन बी रिटन ओवर here as 100 ग्राम्स को मैंने कन्वर्ट किया अपना किसमें, केजी में कन्वर्ट करेंगे, है ना? राइट? तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.167 विल बी द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी दैट इज ऑफ 100 ग्राम वाली बॉडी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, प्लस द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी, सो दैट विल बी 0.2 times v. Now initial momentum and the final momentum needs to be conserved over here. And I will be able to say that 0.4 is equals to क्या 0.167 plus 0.2 v. ये ध्यान रखना है. 0.4 is the initial momentum is equals to 0.167 plus 0.2 v.
इसको सॉल्व करना था और आपको आंसर निकालना था v की वैल्यू. सो v वुड बी इक्वल्स टू योर 1.165 मीटर्स पर सेकेंड. ये आपको करना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड एज सच ओवर हियर. सिंपल सी बात है. टू फ्लोट अ बॉडी मस्ट डिस्प्लेस लिक्विड हुज वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी. बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन देखा हुआ है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है. assertion is not correct over here. ठीक है, वो सही नहीं है. राइट? Why? Because to float a body must displace liquid whose weight is equal to the weight of the body, not greater than the. ये पार्ट गलत हो गया यहाँ पर. ये जो ग्रेटर वाला जो पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पर गलत हो गई है. राइट? तो मैं अब आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सीधा आंसर मार्क करूंगा ऑप्शन डी और मैं ऐसे आगे बढ़ सकता हूं. बट एनीवेज मैं आपको रीजन भी बता देता हूं. स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार. The body will experience no net downward force in the case of floating. बिल्कुल सही बात है. जब बॉडी फ्लोट कर रही होती है तब वहां पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता है. There will be no net force acting on the body at all in the vertical direction. ठीक है, डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड्स हो. ठीक है, सो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज with respect to the distance displacement वाला जो आपका concept होता है, which of the following statement is true for displacement? So can displacement never be zero? नहीं भाई, हो सकता है displacement बिल्कुल जीरो हो सकता है. आपको पता होगा अगर बॉडी स्टार्ट करती है लेट्स से किसी भी पॉइंट से और घूम फिर के बॉडी अगर वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, then the displacement becomes equal to zero. So this statement is not true, right? Its magnitude can be greater than the distance. ये भी true नहीं है. It will either be less than or equal to the distance. That's it. ठीक है, third statement is definitely correct and fourth is also correct over here, that it is the shortest path between the initial position and the final position, and for sure it is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because it requires direction as well as magnitude for proper defining over here of the displacement part. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, दैट इज द ऑप्शन बी. ठीक है, थर्ड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट्स वर करेक्ट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 which says over here that a boat at anchor is rocked by waves whose consecutive crests are. So consecutive crest का मतलब यहां पर क्या है, हमको यहां पर समझना पड़ेगा that we have a basic formula that is v is equals to lambda times f, where v is the velocity, lambda is the wavelength and f is the frequency. Do we all know that? क्या चीज सबको पता है? अगर नहीं पता है तो बच्चा को पता होनी चाहिए. वेव्स के पार्ट में आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा इन योर क्लास 9. राइट? तो मुझे यहां पर गिवन है 20 मीटर्स पर सेकेंड इज द स्पीड. राइट? वेवलेंथ कैसे निकालूंगा मैं? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ ओवर हियर. तो वो हो जाएगा मेरा 100 मीटर्स. और निकालना है आपको यहां से फ्रीक्वेंसी. सो द फ्रीक्वेंसी विल बी 20 अपॉन 100 ओवर हियर, एंड प्रोबेबली फ्रॉम हियर यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज 0.2 हर्ट्ज. ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना? कर लिया था सभी ने? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. लाइक जल्दी से बताएंगे, लाइक द सेशन इफ यू आर ऑल एंजॉयिंग इट. गिव मी अ थम्स अप क्विकली एवरीवन, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ अ बॉडी हैज मास ऑफ 3 kg, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 25 मीटर्स. मतलब एक ये टावर है, लेट्स से इट इज हैविंग अ हाइट ऑफ 25 मीटर्स. ऐसा अगर कुछ टावर है और लेट्स से मैंने यहां से एक कोई बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दिया. ठीक है, सो बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ये है ग्राउंड. ठीक है, यहां पर ये है ग्राउंड. सो व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, लेट्स से यहां पर जाके वो हिट कर रही है बॉडी ग्राउंड पे आते ही, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द मोमेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज इक्वल टू, ये हमको इवैल्यूएट करना है, ये हमको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे देखिए. तो मुझे गिवन है यहां पर हाइट, मैं एक्सप्रेशन कौन सा यूज करूंगा देखेंगे सब लोग. इनिशियल वेलोसिटी है इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, मतलब v स्क्वायर is equal to u square plus twice of a s यूज करूंगा मैं यहां पर यानी इक्वेशन को, है ना? यहां पर मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब u इक्वल टू 0. v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इज 10, मैं अज्यूम कर लेता हूं 10 है इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, वो है 25. तो प्रोबेबली व्हाट यू विल फाइंड इज दैट v स्क्वायर प्रोबेबली इज इक्वल टू 500. इज दैट सो? प्रोबेबली ये आपका आ जाना चाहिए 500, ऐसा करके आपका v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, अगर इस पॉइंट में मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, व्हाट वुड दैट बी? हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. राइट?
तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग, जल्दी सॉल्व करके बताएंगे कितना आ जाएगा आंसर। हाफ द मास इज 3 kg into v square, दैट इज 500। मैंने यहां से सीधी वैल्यू उठा ली। दिस वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड ओवर हियर एंड डेफिनेटली योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज 750 जूल्स। सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स पोर्शन, ये अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यू जस्ट हैड टू इवैल्यूएट द एरिया ओवर हियर। आपको बस यहाँ पर एरिया निकालना था। यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि मार्क करने के लिए, पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, ठीक है। यू हैड टू इवैल्यूएट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है आपको इसका एरिया निकालना था इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी बात है। यहां पर मैं आपको चलिए नाम कर देता हूं, मैं नाम देता हूं। लेट्स से वी हैव दिस पोर्शन ए बी सी। आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है यहां पर ए बी सी। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल? टोटल एरिया निकालने की कोशिश करें। एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल ए बी सी वो कितना हो जाएगा? हाफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हाइट में मान लेता हूं हो गई आपकी 20 एंड बेस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। Then moving on to this part, let's say that this is the point D और ये है मेरा point E. तो what is the area of the rectangle BCDE? ये आपको एरिया निकालना है ना। तो वो कितना हो जाएगा टोटल एरिया? सभी लोग देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 into 1। ये हो जाएगा BCDE का एरिया, करेक्ट है। नाउ लेट्स मार्क दिस पॉइंट ओवर हियर एज F। ये है G, ये है H और लेट्स से ये है I। तो अब मैं जो नेक्स्ट एरिया यहां पर ऐड करने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी ऑफ एन किसका? वो किसका एरिया हो जाएगा यहां पर? वो एरिया मैं लिख देता हूं। चलो यहां पर लिख दिया मैंने एक ट्रेपेजियम का एरिया, दैट इज द ट्रेपेजियम DFGE। इसका एरिया मैं अब यहां पर लिख रहा हूं। तो कैसे हो जाएगा? हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? 10 और 20 मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 1। ये पार्ट आप यहां पर ऐड करोगे ऑफ द थर्ड पार्ट ओवर हियर ऑफ द ट्रेपेजियम DFGE, ठीक है। नेक्स्ट एक और बचता है लास्ट वाला एक रेक्टेंगल, दैट इज FHIG। तो वो है सिंपल सा 10 into 1। इसको आपको सॉल्व करना था एंड देयर यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर ओवर हियर एज ऑप्शन सी। सही है, कर लिया था। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल द 6 क्वेश्चंस करेक्ट? आई वुड लाइक टू नो दैट पार्ट इन द कमेंट सेक्शन। सबसे मैं पूछना चाहूंगा किसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट आए थे, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद योर केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ दिस स्लॉट 2। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स गो अहेड। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आपका GTSC का पेपर कैसा रहा है, उसका क्या क्या सोल्यूशन है, स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन। सो आई एम योर केमिस्ट्री टीचर हियर एट GoPrep. My name is Akanksha Khandelwal and I am bringing this section especially for you people कि क्या रहा है आपका केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। क्या क्या डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं to all the questions that we have brought for you in the GTSC paper. So the very first question that you can see on your screen, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन था। आप सबको आई एम श्योर याद ही होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 grams of sulfur dioxide STP is। अब अगर आप सब याद करेंगे तो STP किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेते हैं at STP it always occupies 22.4 liters, राइट। इतना वो ऑक्यूपाई करती है। सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे। सल्फर 32 है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन 2 है 16, so it comes out to be 64 grams per mole, right? That's the molar mass of sulfur dioxide. 64 grams हो गया। इसका मतलब ये 1 मोल के इक्विवेलेंट है। दैट मींस 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 मोल है ये 64, तो 22.4 लीटर्स करेगा। एज पर द क्वेश्चन 8 ग्राम्स जो है सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना करेगा? बस सिंपली बच्चा यूनिटरी मेथड लगा के आपको सॉल्व करना है एंड द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी, 2.8 डेसीमीटर क्यूब। Okay, this was a question from your mole concept. Now let's move on to the next question. Rutherford's का न्यूक्लियर मॉडल के कंक्लूजन्स पूछे। ये तो आई एम श्योर सभी को याद होगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इट्स अ डेंस ऑब्जेक्ट दैट यू हैव कॉल्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ इन द सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स।
इसको हम रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, अपने सोलर सिस्टम मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? बिल्कुल जिस तरह से सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह ऑन सिमिलर लाइंस आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चारों तरफ रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो ऑल these conclusions were correct. The correct answer for this is option D. Then you had this very interesting question जो आपके law of conservation of mass पे based है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आयरन की स्ट्रिप दे रखी है जिसका इनिशियल मास इज 15.5 ग्राम्स, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कितना है आपका 21 ग्राम्स है, ओके। देन आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन स्टॉप्स, क्योंकि ऑल द कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर जाता है। तो बेसिकली अगर आप आगे पढ़ेंगे, सो आयरन सल्फेट, so copper sulfate is reacting with iron giving you iron sulfate, you can see here iron sulfate plus copper getting formed, ये एक single displacement reaction भी है, okay, following the law of conservation of mass. It says this statement is very important. The iron strip initially 15.5 grams की थी, reaction के बाद 8.5 grams की हो गई। इसका मतलब कितना आयरन बच गया है हमारे पास, 15.5 माइनस 8.5 ग्राम्स, दैट इज 7 ग्राम्स। सो आयरन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 7 ग्राम्स। कॉपर सल्फेट कितना है, 21 ग्राम्स। कॉपर देखो यहाँ पे लिखा है, द मास ऑफ कॉपर इज 8.60, हमें इसे निकालना है, बस सिंपली ऐड कर दो, 28 माइनस 8.60, ओके। When you will do, you will get the correct answer to be option B. ठीक है, you can see it's following the law of conservation of mass. ठीक है, moving on to the next question. ये भी बहुत simple question है आपका, ठीक है, जिसे हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमारे पास जितने कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क हो गया या फिर हमारे पास दिस एरोसोल्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या, ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। एंड के पार्टिकल्स में क्या होता है, जब लाइट हिट करती है, so they scatter the light, and this was a very interesting phenomenon called the Tyndall effect. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, Tyndall effect है, ठीक है। Brownian motion was the zigzag movement, okay, that is a Tyndall effect, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अंधेरे में अगर फॉग है, सपोज आगे फॉग है, फॉग भी कोलॉइड ही है, हम कार की लाइट्स ऑन कर देते हैं, राइट। सो लाइट हमें कैसे दूर तक नजर आता है, क्यों, Tyndall effect की वजह से। The next question that you had is an interesting one. When water is heated to a temperature of 373 Kelvin, तो वो convert हो रहा है steam में, इसे तो हम vaporization कहते हैं। That means हमारा कोई liquid है अगर, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, बिल्कुल सही। इसका उल्टा कहलाता है कंडेंसेशन, बिल्कुल सही। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस एस। देखिए प्रोसेस एस क्या है आपके पास, कंडेंसेशन है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस का नाम है, ये पूछ रहा है उसमें कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है। तो एनर्जी कौन सी हो गई, जिस तरह वेपर को कन्वर्ट करने के लिए आप एनर्जी देते हो, ठीक है, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसी तरह कंडेंसेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड अपॉन योर मोल कंसेप्ट, ओके, एंड दिस क्वेश्चन सेज क्या, that 360 grams of water को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो सबको पता है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, राइट। सो वाटर का कितना होता है, 18 होता है, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, सो 2 plus 16 बिकॉज इट्स H2O, कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल हो गया। So हमारे पास कितना है, 360 divided by 18, you get 20 moles of water. I know एक मोल के अंदर कितना होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है, तो 20 मोल में कितना हो गया, 20 अवोगाड्रो। So option 2 and 4 that is the right answer for this question. So option D is the right answer, option 2 and 4 बिल्कुल सही है इसके आंसर्स हैं। Okay,
आई होप अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल ही लग रहा होगा, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग. Then the next question that you had in the chemistry section, this was the last question जो था आपका, a mixture of acetone and methanol can be separated by. Very interesting question actually again. क्योंकि acetone और methanol, see guys, distillation process जो होता है वो आपके boiling point के difference पे होता है. एसीटोन और मीथेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ता है. सो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम है. जब भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है तब हम फ्रैक्शनल लेस देन 20 केल्विन रहता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है. सो आई होप अब सबको बिल्कुल क्लियर होगा ऑल दीज क्वेश्चंस. फाइन, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस. Also, I want to share one very important piece of information with you people. अगर आपने GTSC का पेपर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है बच्चा, तो सब लोग जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए. The link is provided to you people in the description box. Also, हमारी एक बहुत ही important workshop होने वाली है आप लोगों के लिए मंडे के दिन. So don't forget to join that workshop. It's really important for you people. Okay. Now we'll be moving towards the next section of the paper. ठीक है, वहां देखते हैं आपका कैसा रिजल्ट रहा है. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय. Hello students, this is the paper discussion series of GoPrep Talent Search exam of 12th of 10th standard slot number 2. 10th standard slot number 2. And we are going to discuss the segment of biology. So let's start our discussion of biology segment with the first question of biology or question number 14 of your paper. So tissue found in the area of regular wear and tear is, well, this is a very straightforward question and directly the line has been taken from NCERT. The tissue which is found in regular wear and tear is a kind of epithelium which is called stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. So correct answer is option B. That's the correct answer, students. Let's move to the next question now. What is true for prokaryotic cells? The next question is, what is true for prokaryotic cells? They have ATS ribosomes. This is incorrect. That this is not true. They have lysosomes for waste disposal. Prokaryotic cells do not have any kind of membrane bound cell organelles. So they do not have lysosomes at all. They have photosynthetic pigments in membranous vesicles. That's absolutely correct, students. In case of photosynthetic prokaryotic cells, the photosynthetic pigments are present in membranous vesicles. That is absolutely correct. And they have well-defined nucleus. Well, this is also the incorrect statement regarding the prokaryotic cell. Prokaryotic cell do not have any kind of nucleus. So the correct answer or true statement for prokaryotic cells is option C. That's the correct answer, students. Option C. Answer C. Let's move to the next question now. The inner membrane of mitochondria is dash, while the outer membrane of outer membrane is, again the fill in the blank, dash. So there are two fill in the blanks in the statement. The inner membrane of mitochondria and outer membrane of mitochondria. Both are selectively permeable. Both are selectively permeable. The inner membrane has various folds. It is a folded structure and folds of the membrane are called cristae. The folds of inner membrane are called cristae. On the other hand, outer membrane is more or less porous. It is porous because of the presence of porin proteins. The outer membrane of mitochondria is porous because of the presence of porin proteins. So the correct match with respect to the statement is option A. Deeply folded inner membrane and porous outer membrane. That's the correct answer, students. Option A.
Yes, the answer is option A. Next question. The defensive protein molecules that help in neutralizing the pathogens or toxins released by them are called. So defensive proteins against pathogens and toxins are called antibodies. They are generally named as antibodies. And antibodies can also be called as plasma proteins, immunoglobulins. So immunoglobulins are plasma proteins which are also known as antibodies, which are defensive proteins against pathogens and their toxins. So correct answer is option B. Option B is the correct answer, students. Immunoglobulins, which are the antibodies, defensive proteins. So correct answer is answer B. Yes, students, that's the correct answer. Next question. State true and false for the following statements. Let's see which statement is true and which statement is false. So first statement, nutrients can be provided to crops by fertilizers only. Well, it can be provided by fertilizers, also with the help of microbes and other sources. So only is the incorrect one. So this statement becomes false. Next statement, mixed cropping is an insurance against crop failure due to abnormal weather conditions. It is the statement from your book. It is a correct statement. Yes, it's a true statement. So correct answer to this question, students, is option D. Yes, option D. False. First statement is false and second statement is true. So correct answer is answer D. Next question, students, match the following. Cotyledons. Cotyledons are the embryonic leaves which are present in seed. So embryonic leaves which are present in seed are called cotyledons. So A has to be going with third option. Well, इससे हमें already हमारा answer पता चल चुका है, which is option C. But let's see the other options as well. Let's see the other matches as well. Deodar, it is a gymnospermic plant. Gymnosperm, like Pinus, it is a gymnospermic plant. Flowers. Flowers are present in angiosperms. Flowers are present in angiosperms. And gram, it is a plant or it is a seed which belongs to the category dicotyledonous. Gram seed has two cotyledons. So it is dicotyledonous. So correct answer is option C. A3, B2, C4 and D1. Option C is the correct answer, students. Next question and the last question from this segment. The organisms having pores all over the body and a canal system for bringing of food and oxygen belongs to which phylum? Well, it is a very simple question because question के अंदर ही हमें आंसर मिल चुका है. Porous body and canal system. These characteristic features belong to kingdom Porifera, which has cycon or sponges. So pores and canal system is present in phylum Porifera. That's the correct answer, students. Option B. That's the correct answer. So correct answer to this question is answer B. That's it from my side, students. This was the segment of biology. If you have not attempted your paper yet, आप next slot में अपने paper को attempt कर सकते हैं. Don't forget to join the workshop which will be held on Monday. So don't forget the workshop, students. And now you can move to your next segment. Thank you so much. Have a nice day, students. Hello everyone, welcome to GoPrep channel for grade 10. This is me Avi Arora back with you people and आज हम बात करने वाले हैं कि GTSC के slot 2 के बारे में. जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर आप उन बच्चों में से हैं जिसने अभी तक GTSC नहीं दे पाए हैं due to some reason, what you guys could do is
you can attempt the exam in the next slot. So guys, make sure कि सभी लोगों ने सेशन को कर दिया है लाइक एंड चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द GTSC सेशन स्लॉट 2. तो स्लॉट 2 का पेपर कैसा था फॉर मैथ्स पर्सपेक्टिव? वाज इट इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट? जरूर मेरे को चैट में बताना. Now here I will discuss all the 20 questions that 21st से लेके 40th question सबको हम डिस्कस करेंगे, and we'll look into this answer key and solutions of all the questions. डिस्कस करेंगे कि यार क्या लेवल था पूरे पेपर का, मेरे को जरूर कमेंट से बताना. And let's have a look at all the questions one by one for GTSC slot 2. This is me, Avi Arora, and guys, let's get going with all the questions of GTSC. चलो. So first question है 21st question, which is the following statement true given regarding the figure. ठीक है. So that means what we have to do over here is the solution we have to check कि इनमें से कौन सा statement true है. Now this could easily be figured out. This is from area of triangles and parallelograms chapter जो हमने 9th grade में पढ़ा था, right? तो यहाँ से हमको एक बात पता चल रही है कि यार देखते ही फिगर में मेरे को लग रहा है यार जो ABCD है या फिर ABDC in this figure ये पैरेललोग्राम, और अगर बात करें ये CDFE पैरेललोग्राम की, CEFD पैरेललोग्राम, ये यहां से यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां एक और पैरेललोग्राम CEFD, इनके जो एरियाज हैं, एरियाज आएंगे इक्वल. क्यों? बिकॉज दे बोथ आर ऑन द सेम बेस CD एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AF एंड CD. सो यहां से ये पता लगे कि इनका एरिया इक्वल है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है. आई थिंक दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ के देखते हैं. वन कॉर्ड, यहां से दिखते ही पता लग रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई है कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड. तो कैन आई से दैट हाफ ऑफ डायामीटर, दैट्स रेडियस, इज द लार्जेस्ट सेमी कॉर्ड. मतलब कि कॉर्ड का हाफ कर दोगे तो लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी वो कॉर्ड होगी. दैट मीन्स रेडियस हैज टू बी ग्रेटर देन 5. रेडियस को 10/2, दैट मीन्स सेमी कॉर्ड क्या है 10/2, उससे बड़ा होना पड़ेगा इन एनी कंडीशन. तो इसका आंसर क्या हो गया? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. In the figure ABC 69 है. तो whenever I see this kind of question, I always mark the values in the figure itself. तो इस पे यहां पर ये एंगल आ गया है 69 डिग्रीज, ये एंगल है 31. तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC 69 प्लस 31 100 डिग्रीज, तो ये हो गया 80. ये 80 है. तो यहां पर ये वाला एंगल ऑन द सेंटर, एंगल separated by a chord on center is double the angle separated on the circumference. तो अगर यहां पर 80 है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 160 डिग्रीज हो जाएगा. तो इसका आंसर हो गया C 160 डिग्री. ठीक है. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा C 160 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 legs of an isosceles triangle. Let me draw an isosceles triangle here. अब यहाँ पर दो कंडीशंस निकल के आ रही है. इसने कहा 2 legs, एक है लेंथ 12 और एक है 27. यहां से दो कंडीशन निकल के आ रही है. थर्ड लेंथ या तो 12 हो सकती है या 27 हो सकती है. तो यहां पर आपको एक चीज सोचनी है. एक थ्योरम पढ़ी थी हमने लास्ट ईयर, क्या थी वो, कि सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड वन. तो 12 प्लस 12, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 27. Therefore third side cannot be 12, third side has to be 27. सम आ जाएगा 27 प्लस 27, that's 54 प्लस 12 66. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था एज कंपेयर टू अदर वन, बट नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट अच्छा था बट कैलकुलेटिव नहीं था, लेंथी नहीं था, है ना. आगे बढ़ते हैं. If area of equilateral triangle is 4√3 centimeter square, find the value of semi-perimeter. ठीक है. तो यार हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, वो होता है √3/4 a square. ये हमने लास्ट ईयर हेरॉन्स फॉर्मूला में पढ़ा था. तो इसको इक्वेट करते हैं 4√3 से. √3 कैंसिल, a स्क्वायर आ जाएगा 4 into 4 मतलब कि a की वैल्यू है, साइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 4 सेंटीमीटर है. मतलब कि पेरीमीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, S will be equal to 3a/2, that's 12/2, और सिंपली यू कुड से 6 सेंटीमीटर. कौन सा आंसर हो गया?
C will be the answer for this question. आगे बढ़ते हैं. Next है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन. आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर GTSE स्लॉट 2 पेपर. इसको मैं एक क्लियरली आपको फिगर ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं. यहाँ पर हमने ट्रायंगल या ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है. ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है, ये देखो. यहां से इसको नाम कर देते हैं, इसका नाम ले देते हैं ABCD. इसको टैगिंग कर दी हमने. अब वो कह रहा है AD का मिड पॉइंट M है और BC का है मिड पॉइंट N. तो दिस पॉइंट बिकम्स M एंड दिस पॉइंट बिकम्स N, राइट. तो यहाँ पर M और N पॉइंट्स मिल गए हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू फर्दर इज, हमें आगे क्या करना है, हमको ये पता लग गया कि ये दोनों लेंथ्स इक्वल है और सिमिलरली ये लेंथ्स भी इक्वल है. अब इससे मेरे पास क्या निकल के आया, इसने कहा यहाँ पर ये 12 है. तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं. आई एम गोइंग टू जॉइन BD एंड लेट्स से ये MN को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ सिंस these two are equal, तो M हो गया मिड पॉइंट पता है, और ये लाइन पैरेलल भी है AB के. ये लाइन है पैरेलल टू AB. देयरफॉर बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OM will be half of AB. OM की वैल्यू हाफ AB. दिस इज इक्वल टू, अगर वो AB 12 है तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. दिस लेंथ है 6. अगर ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, द एंटायर इज 14. ON है 14, तो ये 14 हो जाए. 14 माइनस 6 ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. ये 8 है तो DC की वैल्यू डबल हो जाएगी. दिस विल बिकम 16. तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन D, दैट्स 16 सेंटीमीटर. सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? सिंपल है. What is the mean of squares of first 5 natural numbers? 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square divide by 5 करना, ये निकालना है हमको. That's it. तो 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 divide by 5. 25 16 ये दोनों हो गए 25. फिर से 25 plus 25 50. 55 upon 5, that's simply 11. Sum of what mean of squares of first 5 natural numbers कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा. Mean of A, B, C, D and E is 28. ठीक है. अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे ना, आपको ट्रिक लगानी है. आपको ट्रिक ये समझनी है कि सम क्या होता है? मीन मल्टीप्लाइड बाय, मीन को मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स, कितने टोटल नंबर्स के साथ. तो मीन यहां पर दिया है 28 into 5. कितना हो गया ये? 140. Sum of those 5 numbers is 140. ठीक है. अब मीन ऑफ A, C, D and E, तो सम ऑफ A, C and D, मतलब A plus C plus E. मीन ऑफ A, C and E is 24. A plus C plus E कितना है? 24. इस बार 3 नंबर्स हैं, into 3, 72 आ गया. तो यहां पर A plus B plus C plus D plus E 140 है, A plus C plus E है 72. तो B plus D कितना आ जाएगा? 140 minus 72, that's 68. अब हमको क्या निकालना है? मीन. तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2. 34 will be your answer. So answer for this question is 34. Fine. तो यहां पर मीन ऑफ B and D कितना आ गया? B plus D by 2, that's 34. Next question. सही है, सबका आ गया. तो D easy है. 29th question कह रहा है कि tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn bears a number which is multiple of 3? 3 का मल्टीपल चाहिए. देखो 3, 6, 9, 12, 15, 16, 6 नंबर्स हैं. 6 आर द फेवरेबल आउटकम्स, 20 आर टोटल. आंसर हो गया 3/10 और सिंपली यू कुड से ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा. सही है. I think this was one of the most easiest questions. So whenever you see a probability question, guys, go for it. सबसे आपको कभी probability question दिख रहा है, make sure कि आप पहले करेंगे. काफी easy होता है questions. ठीक है. Next, irrational numbers are those which cannot be represented in the form P by Q and they have ठीक है. तो rational और irrational के ऊपर क्वेश्चन आया. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है pi is an irrational number. बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. Yes, pi is an irrational number and one of the common myths I keep on telling people that pi is not equal to 22/7 or it's not even equal to 3.14. These are the approximate values. Now, since this is in the form of P by Q, 22/7 is absolutely a rational number. So we could say that both the statements are right and answer for this question will become
ऑप्शन सी। ठीक है, आई थिंक ये सभी लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि आई कीप ऑन टेलिंग, आपने अगर मेरे यूट्यूब देखे तो हम ये बताते रहते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा कि पाई 22/7 नहीं है और 3.14 भी नहीं है। 3.14 22/7 आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बोल रही है f -3 = 5। नेक्स्ट, तो इसको आगे सॉल्व किया जाए, x को -3 पुट करना है, दैट्स ऑल। तो a इंटू -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 -10 इज इक्वल टू 5। तो -27a, 9 इंटू 9 81, -12 -10 इज 5। तो ये हो गया -27a, 81 में से 22 गया, तो ये हो जाएगी वैल्यू 59 इज इक्वल टू 5। तो -27a, 59 minus 5 -54, a equals to, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स C। C इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many polynomials can have -2 and -3 as zeros? -2 and -3 as zeros. देखो, कोई भी पॉलिनोमियल जो x + 2 into x + 3 में k लगा के हो जाए, that is simply a polynomial having zeros -2 and -3. तो k की कितनी पॉसिबल वैल्यू से कुछ भी रख दो, you can substitute k as anything, you'll get a polynomial having zeros. तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, it has infinite number of solutions, इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of triangle formed by the points A 2,0, B 6,0 and C 4,6. अब आप चाहो तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हो, x1 y2 minus y3, आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, बट मैं इसको सिंपली फिगर से ड्रॉ करूंगा, दैट विल मेक इट वे टू इजियर। देखो कैसे, ये 2,0, ये 6,0 और ये है 4,6, 4,6 कुछ अराउंड यहां पर होगा, ये 4,6। If you join these points, तो यहां पर 4,6 है, 4,6 है, तो यहां पर वैल्यू आ गई 4, यहां पर हाइट आ गई 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाफ 4 into 6, that is equal to 2 into 6, that's 12 square units. तो इसका आंसर क्या हो गया, C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If a, 4 lie on the graph 4x plus 3y equal 28, then the value of a, कुछ नहीं है, बस a अगर इस पे lie कर रहा है तो a, 4 will satisfy the equation, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a plus 12 equals 28। तो 4a is equal to 28 minus 12, that's 16, a की वैल्यू आ गई है 4, so a becomes 4, that's option D। ठीक है, I think again a very easy question, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की शेप में है, ड्रॉ करते हैं। यहां पर ये जो है, दिस इज अ हेमिस्फेयर, इधर भी एक हेमिस्फेयर है, तो यार ये हेमिस्फेयर मिला के एक स्फेयर बन गया। एंटायर, ये रेडियस है ये, और ये भी रेडियस है, और पूरी लेंथ कितनी दे रहा है ये, पूरी लेंथ विल बी 2। Now if this is radius, entire become radius plus radius is diameter. तो अगर पूरी लेंथ 2 सेंटीमीटर, this will become 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी बीच वाले लेंथ। तो सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, h प्लस 4/3 आर, h की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर देते हैं, r इक्वल्स, r कितना आ जाएगा, इसको यहां पर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो r आ जाएगा, r कितना दिया हुआ है, r इज गिवन टू बी 0.25, तो पाई 0.25 स्क्वायर, h की वैल्यू, h कितना आ रहा है, h इक्वल्स 1.5 प्लस 4/3 into 0.25. This is the final value, and when you solve it, you will get it equal to 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
Next, the lines are parallel if they do not intersect stated in the form of a definition. ये एक definition है, it's not a postulate. Very easy one. Next है, if M is parallel to N, ये दोनों lines parallel हैं, तो QSR मतलब कि हमें ये angle निकालना है. So if this angle is 60 degree, this is 120. तो 3A equals 120 degrees. A आ जाएगा 40 degree. चलो first part हो गया, A 40 है. This is 40. Now if this is 60, the entire this angle will be 60. तो ये 40 है तो B कितना हो गया 20. तो even this will be 20. 40 plus 20 60 angles and property से ये angle आ जाएगा 120 degree. और इसका आंसर हो गया A. ठीक है, easy है. Next, supplement of 54 degree 30 minutes is सिंपल है. 180 में से सप्लीमेंट को माइनस कर दो, 54 डिग्री 30 मिनट्स. नाउ फॉर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 54 30 डिग्री 30 मिनट्स, तो कितना हो गया ये 125 डिग्री एंड 30 मिनट्स. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी. सही है. 39th क्वेश्चन. इन दिस फिगर AB perpendicular to BC. ठीक है, 90 डिग्री हो गया एंगल. दिस एंगल बिकम्स, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है. मोर ओवर दिस 32, तो इवन दिस विल बी 32. तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 प्लस 32 कितना आ गया 90 और 30 122. तो यू विल बी लेफ्ट विद 68 122 सॉरी 58. ठीक है, 58 डिग्रीज राइट. 58. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x प्लस 14 प्लस x इज इक्वल टू 58 डिग्री. तो यहाँ पर 2x प्लस 14 आ जाएगा 58 डिग्री. 2x की वैल्यू 44 डिग्री, x आ गया 22 डिग्री. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. The quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus. हम जानते हैं rhombus के आप midpoint join करोगे, rhombus से मिलता है rectangle. rhombus के midpoint join करके मिलेगा rectangle और rectangle के midpoint join करके मिलता है rhombus. तो डेफिनेटली जिस फिगर के बारे में जो PQRS फिगर है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक rectangle है. तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत. तो ये क्या कह रहा है, ये भी सही है काइंड ऑफ, बट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास. डायगोनल्स ऑफ PQRS आर, दिस इज नॉट एक्यूरेट इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं. डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर काइंड ऑफ. डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट. डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल. ये केस होता है रेक्टेंगल का. So that's all from my side. I hope बच्चों ने काफी अच्छे से पेपर दिया होगा guys. And अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, you can still enroll into slot 3. And that's all from my side. Make sure that you attend the workshop going to be on Monday. So this is me, Avi Arora, signing off, and stay tuned for the next aptitude session as well. Aptitude का discussion अभी बाकी है. Bye. Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend come mentor for the MAT, the Mental Ability Test. Friends, I hope that your GTSC went really well. But if still you have not attempted the same, please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given at the description below. And now let us straight away begin with the discussion of the questions. So here we go. Now friends, this was the first question. Now just have a look at the options. Now guys, you all very well can see that all the game is of eliminating the options. Just before u, if you do -1 from u, you will be getting t. And similarly, just before q, if you do -1 from q, you will be getting p. So guys, the only option which has p at the beginning is option number B. Alright everybody, and hence all the other options are eliminated. And hence आप directly option number B mark कर सकते हो. ठीक है guys? Is it very clear? So now let us come to the next question. And the next question is this. Now guys, these are the options available. अब आप यहाँ पे easily देखो, R plus 1 is S plus 1 is T plus 1 is U plus 1 is V, and V plus 1 is W.
So guys, the only option which has F at the beginning is option A, and hence all the other options are eliminated. The right answer is option number A. Alright, हमें बाकी के एलिमेंट्स W के बाद क्या आएगा ये पता करने की जरूरत नहीं है. Alright, we just have to mark the answer and option A is the best answer now. Now coming to the next question. Now guys, this is the question along with the options available. G star H. Guys, सबसे पहले तो मैं कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करूंगा. I will be denoting a male person by the sign of plus, female person by the sign of minus, and a couple. Couple refers to a pair of married persons by the sign of equals to. ठीक है, तो मेल पर्सन को प्लस से डिनोट किया जाएगा, फीमेल को माइनस से, एंड कपल्स को इक्वल टू से. हेंस गाइस, G स्टार H. G स्टार H का मतलब क्या है? G स्टार H का मतलब है G is the wife of H. Obviously then H will be the husband. Now guys, H minus I. Guys, H minus I का मतलब है I is the mother of H. देखो रिवर्स हो गया ना, H minus I का मतलब I is the mother of H. Alright, A के जगह H रख दो, B के जगह I रख दो. So I is the mother of H. Next, I slash J. I slash J का मतलब क्या हो जाएगा? I slash J का मतलब उल्टा. J is the grandson of I. J is the grandson of I. And then क्या कहा जा रहा है? J and K. Guys, J and K means J and K. इसका मतलब समझो guys, J and K means J is here, K is here. It means K is the paternal uncle of J. K is the paternal uncle of J, and hence this is the family tree to be formed. ये family tree है जो बनेगा. And now guys, the question is how is G related to J? As you can see, G is the mother of J, and hence option C is the right answer. Clear everybody? आगे बढ़ते हैं. Now guys, now this is another very simple question. आपको केवल इतना करना है कि 4 गिवन है, 6 गिवन है, 45, 9 एंड 10 गिवन है. तो 45, 9 एंड 10 गिवन है. अब गाइज यहाँ पे Q सिंबल है, Q डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाई. यहाँ पे प्लस सिंबल है, P सिंबल है, P डिनोट्स माइनस. यहाँ पर R सिंबल है, R डिनोट्स डिवीजन, एंड यहाँ S सिंबल S डिनोट्स एडिशन. और इसको सॉल्व करना है बाय द बॉडमास रूल. तो गाइज बॉडमास रूल, ये तो 4, 6, ये तो 24 होगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ पे ये प्लस 10 होगा. अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, 24 माइनस 5 आप कर लो, 19 प्लस 10 29 आएगा. या आप 24 प्लस 10 34 कर लो, माइनस 5 कर लो, तो भी 29 आएगा. एंड हेंस द राइट आंसर टू द क्वेश्चन फॉलोइंग द बॉडमास रूल is option number D, that is 29. Clear everyone? Next, coming to the next question. अब guys ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और आपको इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. फाइन एवरीबॉडी? तो गाइज सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ पर आप देखना शुरू करो. यहां पे क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखो, स्टूडेंट है. सो गाइज यहां पे कहा जा रहा है स्टूडेंट विल गो टू द लाइब्रेरी. गाइज स्टूडेंट विल डायरेक्टली गो टू द लाइब्रेरी, इसके पहले स्टूडेंट विल एंटर द कॉलेज. ऑलराइट, स्टूडेंट विल एंटर द कॉलेज, और इसीलिए आप कुछ और ऑप्शन भी देखो, इसको अब छोड़ दो. ऑलराइट, यहां पे क्या कहा जा रहा है, देखो स्टूडेंट विल एंटर द कॉलेज, कॉलेज के बाद या फिर ऐसा है स्टूडेंट विल एंटर द लाइब्रेरी, 5 इज लाइब्रेरी. ठीक है, तो गाइस देखो क्वेश्चन ने क्या कहा. अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात माने तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 का मतलब स्टूडेंट. अब स्टूडेंट के बाद क्या, यहां पे 5 कहा जा रहा है, 5 का मतलब लाइब्रेरी. ऑलराइट, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, 1 का मतलब कॉलेज. इसके बाद कहा जा रहा है 2 का मतलब बुक्स, एंड देन फाइनली कहा जा रहा है 3 का मतलब रीडिंग. ये है ऑप्शन नंबर ए. अब आप खुद देखो ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं. ऑप्शन बी कह रहा है सबसे पहले 1,
1 का मतलब कॉलेज, कॉलेज के बाद कहा जा रहा है 5, 5 का मतलब लाइब्रेरी। और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो अभी 5 के बाद 4, 4 का मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद 2 है, 2 का मतलब बुक्स, एंड बुक्स के बाद 3 है रीड। अब गाइस ऑप्शन नंबर सी को देखो, 2 है, 2 का मतलब सबसे पहले बुक्स, उसके बाद 5 है, 5 का मतलब लाइब्रेरी। ऑल राइट, देन गाइस देन 1 है, 1 का मतलब कॉलेज, देन कॉलेज के बाद है 3, 3 का मतलब है रीडिंग, एंड 3 रीडिंग के बाद है 4, 4 का मतलब है स्टूडेंट। ऑल राइट, एंड फाइनली गाइस आप ये देखो ऑप्शन नंबर डी, 4 में सबसे पहले है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट, इसके बाद है 1 मीन्स स्टूडेंट एंटर्स द कॉलेज, कॉलेज के बाद 5, आफ्टर एंटरिंग द कॉलेज द स्टूडेंट गोज टू library. Now after going to the library the student takes out a book, 2 stands for book, and now when he takes out the book it is given 3, 3 means he starts reading, and hence option number D is the most suitable answer. ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए इसलिए गलत है बिकॉज स्टूडेंट पहले कॉलेज कंपाउंड में आएगा फिर लाइब्रेरी में जाएगा, इसलिए ये गलत है। ऑल राइट, क्योंकि कॉलेज कंपाउंड के अंदर लाइब्रेरी होगी। ऑप्शन बी क्यों गलत है? ऑप्शन बी कह रहा है कि कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाएगा, ठीक है, बट लाइब्रेरी के बाद स्टूडेंट, ये गलत है। ऑल राइट, स्टूडेंट पहले होना चाहिए था। ऑल राइट, ऑप्शन सी बुक के बाद लाइब्रेरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हेंस द मोस्ट सूटेबल, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी, कि स्टूडेंट पहले कॉलेज एंटर करेगा, देन लाइब्रेरी, देन ही विल टेक आउट द बुक्स एंड देन ही विल रीड, एंड हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं गाइज, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोविड के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जब कोविड के सिम्टम्स होंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप हॉस्पिटल जाओगे, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल जाने के बाद आप कोविड टेस्ट कराओगे, कोविड टेस्ट के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ही आप उसका ट्रीटमेंट कराओगे। फाइन, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब कुछ लोग सोचना चाह रहे होंगे या सोच रहे होंगे बी क्यों गलत है। गाइस बी इसलिए गलत है क्योंकि आप कोविड टेस्ट पहले नहीं करा सकते, पहले इसके सिम्टम्स होने चाहिए। ऑल राइट, एंड कोविड टेस्ट के जस्ट बाद आप नंबर 4 यानी ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, पॉजिटिव आता है रिपोर्ट तब कराते हो। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी कह रहा है कि चलो आपको कोविड के सिम्टम्स आ गए, कोविड के सिम्टम्स के बाद आप तुरंत, आप पहले कोविड पॉजिटिव कैसे होगे? कोविड के सिम्टम्स के बाद आप पहले हॉस्पिटल जाओगे, जांच कराओगे तो कोविड पॉजिटिव होगे, एंड हेंस दिस इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी ने क्या कहा कि आपको कोविड के सिम्टम्स आए तो आप तुरंत फिर कोविड पॉजिटिव नहीं होगे, आप पहले हॉस्पिटल जाओगे, आप टेस्ट कराओगे। ऑलराइट, एंड हेंस ये ऑप्शन भी गलत है। सो द मोस्ट सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, दिस इज अनदर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है दैट एंड्रॉइड is coded as DQG, Android is coded as DQG URLNG, और अगर ऐसा है तो फिर, अगर ऐसा है, एंड एक और एग्जांपल इसने दिया है कोविड, कोविड इज ऑल्सो कोडेड एज FRYLG, FRYLG। अगर ऐसा है तो वैक्सीन को कैसे लिखा जाएगा? दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन टू यू। एंड नाउ गाइज, अब आप लॉजिक देखिए कि लॉजिक क्या है। गाइज यहाँ पे थ्रू आउट आप देखोगे तो +3 हो रहा है, A+3 BCD, N+3 OPQ, D+3 EFG, R+3 STU, O+3 PQR, I+3 JKL, D+3 EFG, similarly C+3 DEF,
O प्लस 3 PQR, V प्लस 3 WXY एंड सो ऑन गाइस। तो यहाँ पे भी उसी को फॉलो करो। V प्लस 3 क्या होगा? QV के बाद WXY, A के बाद BCD, ऑलराइट, C के बाद DEF। तो गाइस आंसर वो होगा जिसमें YDFF आएगा। तो YDFF यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये ऑप्शन तो अब नहीं हो सकते, राइट। अब I के बाद JKL, तो गाइस ये वाला आंसर होगा, राइट। आगे आप चाहो तो कर लो बट कोई फायदा नहीं। N के बाद OPQ, NE के बाद FGH, एंड हेंस द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दैट इन अ सर्टेन कोड डाइस इज कोडेड एज एंड हैश एट द रेट and then 0. Alright everybody, next. अब क्या कहा जा रहा है? Media has been coded as $0 and hash star, and then आपसे कहा जा रहा है कि made को कैसे लिखा जाएगा। Now guys ये तो डायरेक्ट कोडिंग हो गई, आप देखो E को यहाँ भी 0, E को यहाँ भी 0, तो E को यहाँ भी 0। ऑलराइट, D को यहाँ भी एंड, D को यहाँ भी एंड, एंड D को यहाँ भी एंड। A को स्टार कॉपी डाउन कर दोगे एंड M को डॉलर। तो गाइस डॉलर स्टार एंड 0, डॉलर स्टार एंड 0 क्या हो जाएगा? डॉलर स्टार एंड 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाउ गाइस दिस इज अनदर क्वेश्चन। इसके हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। गाइस सबसे पहले एक शहर होता है सिटी, सिटी के अंदर कहीं सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अंदर बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर आपका फ्लैट होता है, एंड फ्लैट में तो कई रूम हो सकते हैं, उसके अंदर आपका रूम होता है। So 15324 means option number B is the correct answer. ठीक है guys, and hence the right answer is option number B. Fine everyone. Coming to the next question. Now guys, this is another very simple question. Dice का question है, और guys dice पूरी तरह से एक imagination का गेम है। अगर आप properly imagine कर पा रहे हो, 3D images visualize कर पा रहे हो, so this is just like a game for you. This is a game, nothing else. But फिर भी सारे स्टूडेंट्स का 3D इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता, एंड हेंस मैं आपको इसका एक मेथड बता देता हूं। सो गाइज, व्हेन 2 or more positions of the same dice are given and they have exactly one common face, मैं रिपीट कर दूं, when 2 or more positions, ये 2 positions of the same dice हैं, so when 2 or more positions of the same dice are given and they have only one face common, 2 है दोनों में कॉमन, then we can find all the pair of opposite faces. कैसे? तरीका ये है कि दोनों ही फिगर में जो कॉमन है 2, उससे शुरुआत करो। दोनों ही फिगर में जो कॉमन है 2, उससे शुरुआत करो, एंड आप क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। अगर आप इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाओ, ऑलराइट। और अगर आप पहले वाले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। तो क्या होगा? 2 के बाद 4 आएगा एंड 4 के बाद 5 आएगा। यहाँ पे 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, एंड हेंस 1 का अपोजिट इज 5, 4 का अपोजिट इज 6, एंड अब 2 का अपोजिट क्या बचा? 3। ऑलराइट, एंड हेंस विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 6 इज एट द टॉप? गाइस 6 का अपोजिट 4 है, तो अगर 6 टॉप पर है तो बॉटम पर 4 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइन एवरीवन, मैं अगेन रिपीट कर दूं गाइस, आप बहुत ध्यान से सुनना। When 2 or more positions of the same dice is given and they have exactly one common surface, जैसे कि यहाँ 2 दिख रहा है, then we can find all the pair of opposite faces. रूल बस इतना है कि जो कॉमन फेस है उसी से स्टार्ट करो। तो दोनों में 2 कॉमन है, और दोनों से स्टार्ट करो 2 से, कॉमन फेस से, और दोनों में क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी जाओगे तो 2 के बाद 5 आएगा एंड 5 के बाद 4 आएगा। यहाँ पे 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 6 आएगा, एंड स्टिल 5 का अपोजिट इज 1 एंड 4 का अपोजिट इज 6।
2 के ऑपोजिट 3। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो जाना है तो दोनों में क्लॉकवाइज चले जाओ, जाना है दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। ऐसा नहीं चलेगा कि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज रॉन्ग। या तो दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, बस शर्त यह है कि जो कॉमन एलिमेंट है उससे शुरुआत करो। हेंस विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 6 इज एट द टॉप, अगर 6 टॉप पर है तो बॉटम पर 4 होगा। ऑलराइट एवरीवन, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडे सेशन। एंड गाइज, मंडे को आप सभी का वर्कशॉप होगा, so do not forget to attend the same. See you, take care.